پلیز, بہت امپورٹنٹ ہے یہ. اور یہ جہاں سے یہ خبر آئی ہے وہ غلط خبر ہو نہیں سکتی, لیکن مجھے محتاط بھی کیا گیا. محتاط کیا گیا؟ جو میرے پاس خبر آئی ہے کہ ٹرمپ نے کیا کہا, اس کو عاصم کی میٹنگ میں بتا دیں, میں آپ کو وہ بتا دوں. سلام دعا کے بعد میری اتنی تعریفیں کرنی شروع کر دی, مجھے اتنا فلیٹر کیا, اس نے مجھے اتنی چاپلوسی کی, مجھے اتنی میری تعریفیں کی, اور میں چپ کر کے ہلکی سی مسکراہٹ دے کے میں سر ہلاتا رہا, اور میں نے کہا بولتا رہے بچہ, بولتا ہے. کہتا ہے لیٹ ہم اسپیک, اینڈ کہتے ہیں مجھے چند منٹ میں پتہ چل گیا کہ یہ بندہ کیا چاہتا ہے. یہ مجھے سمجھتا ہے کہ میں چاپلوسی, میں فلیٹری, میری اگر کوئی بڑا, لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹرمپ جو ہے نا بڑا اس کا غرور ہے, تو اس نے کہا, کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں میرا بڑا غرور ہے, تو اگر میری چاپلوسی کرو اور میری تعریفیں کرو تو وہ مجھے جو ہے نا قابو کر سکتے ہیں. کہتے ہیں میں نے سمجھ گیا کہ یہ اس کو یہ بتایا گیا ہے, تو میں نے کہا چل بیٹا کرتا رہے. تو کہتا ہے لیٹ ہم کنٹینیو اینڈ ہی کیریڈ آن, آئی لیٹ ہم گو آن, اس کا لفظ ہے. پھر اس نے کہا کہ جی دیکھیں پاکستان کتنا امپورٹنٹ ہے اس خطے میں, ہم فلانی جگہ پر بیٹھے ہیں, ہمارا نیبر افغانستان ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, ایران ہے, ہمارے اسٹریٹ آف ہرمز کی جو ٹریفک ہے اس کے بھی ہم ڈیفینس کر سکتے ہیں, گوادر ہمارے پاس ہے, ہماری زبردست اسٹریٹجک لوکیشن ہے, اوپر ہمارے سینٹر, مطلب اس نے پول باندھے کہ پاکستان کتنا ضروری ملک ہے کہ آپ اس کو اگنور نہ کریں. تو ٹرمپ کہتا ہے میں سنتا رہا. پھر اس نے کہا کہ اس وجہ سے ہمارا امریکہ کے ساتھ الائنس بہت ضروری ہے. سنے ذرا, کہتا ہے ہمارا امریکہ, یہ عاصم کہہ رہا ہے ٹرمپ کو, ہمارا امریکہ کے ساتھ الائنس بہت ضروری ہے, اور اس لیے کیونکہ آپ جو ہیں, پھر اس نے ٹرمپ کے تعریفیں کی, آپ زبردست آدمی ہیں, آپ پیس میکر ہیں, آپ بڑے کم بیک والے آدمی ہیں, آپ ہار نہیں مانتے, آپ لڑتے رہے, آپ دوسری دفعہ جو صدر بن گئے, کمال ہے آپ کا. اور اسی تعریفوں کے پل میں اس نے کہا کہ آپ کو تو جو انڈیا پاکستان کی آپ نے جنگ ختم کرائی ہے, آپ کو تو نوبیل پرائز دینا چاہیے. تو اس پر ٹرمپ نے کہا کہ میں نے اس کو سوچ کے کونے میں رکھ لیا. میں نے کہا اچھا بچو, میں تیری یہ آفر کا نا تجھے بتاؤں گا. یہ اپنے دوست کو بتا رہا ہے, یہ جو کانگریس کا بڑا سینئر ریپ ہے اس کو کہہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں جب اس نے یہ کیا, اچھا, اور اسٹرانگ مین, فائٹر, مین آف پیس, جنگ کیسے کم کرائی, اور جناب آپ کو یہ کرنا ہے, اور اس لیے آپ جیسا لیڈر, پاکستان کے ساتھ الائنس ہمارا, آپ کے جب آپ جیسی لیڈرشپ امریکہ میں تو بہت ضروری ہے, اس لیے ہم بڑا کرٹیکل ہیں. ہم سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں, ہم نے ماضی میں غلطیاں کی, ہم نے خود, اس کو کہتا ہے ہم نے ڈپلیسٹی کی ہے, کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو دھوکہ دیا ہے. عاصم منیر نے ٹرمپ کو کہا ہم نے آپ کو دھوکہ دیا, ہم نے آپ سے غلط بیانی کی, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہمیں بائی گون, ابھی ماضی کو چھوڑ کے آگے دیکھنا چاہیے کہ پاکستان اور امریکہ کی کس طریقے سے یہ تعلقات ہیں, اس کو مزید مضبوط کیا. اچھا, اب ٹرمپ کہتا ہے کہ میں سنتا رہا. جب اس نے یہ یہاں آ کے جو ہے نا اس کو سانس تھوڑا, میں نے کہا تھوڑا, تو کہتا ہے میں نے نا یہ جتنی سے ساری باتیں کی, میں نے اس کو کہا کہ بات سنو, میرے پر میرے کانگریس کے ممبر, میرے سینیٹر, میرے مشیر, میری حکومتی, میری پارٹی بہت زیادہ پریشر ڈال رہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے, پاکستان میں فوجی آمریت ہے, تم نے قبضہ کیا ہوا ہے. عاصم کو کہا تم نے قبضہ کیا ہوا ہے, ڈیموکریسی نہیں ہے, جو لوگوں کی مینڈیٹ ہے الیکشن کا سارا پتہ تھا, وہ تم نے ختم, عمران خان کو تم نے جیل میں ڈال دیا. میرے پر بہت پریشر ہے کہ عمران خان کو جیل سے رہا کرواؤ, پاکستان میں جمہوریت کو بحال کرو, اور میں بہت انڈر پریشر ہوں. ابھی ذرا آپ دیکھیں عاصم منیر کیا باتیں کر رہا تھا اور ٹرمپ نے اس کو کیا جواب دیا. آگے چل کے کہتے ہیں میرے پر بہت پریشر ہے. پھر اس نے کہا دیکھا آپ نے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ آ گیا ہے, آپ نے دیکھا پبلک, آپ نے ٹویٹس دیکھے ہوں گے جو ولسن کے, رچرڈ گرینڈل کے, زلمائے خلیلزاد کے, جیک برگمن کے, آپ کے اپنے پاکستانی ڈائسپورا کتنا پریشر ڈال رہی ہے میرے پر, وہ اپنے سینیٹرز پہ ڈال رہے ہیں, وہ اپنے ریپ, مطلب اس نے بہت ڈرامہ ڈھول بجا کے عاصم کہا کہ بھائی جان میرے پر بہت پریشر ہے کہ عمران خان کو ریلیز کرواؤ اور پاکستان میں جمہوریت کو بحال کرواؤ ہے جی. تو کہتا ہے عاصم, پتہ کیا کہتا ہے, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر, جواب سنیں, کہتا ہے عمران خان اگر رہا ہو گیا, پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہت زیادہ پرابلمز ہو جائیں گے. ٹرمپ صاحب, عاصم جواب میں ہی کہہ رہا ہے, باقی باتیں بھول گیا آپ نے. کہتا ہے اگر عمران خان کو آپ نے رہا کر دیا, ڈیموکریسی, لفظ اس کے تھے President Trump, democracy in Pakistan means Imran Khan as prime minister. And if Imran Khan is prime minister, then there will be serious problems with USA and Pakistan. کہ اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں پاکستان میں, جمہوریت کا مطلب ہے کہ عمران خان وزیر اعظم ہوگا, اور عمران خان اگر وزیر اعظم ہو گیا تو بہت حالات خراب ہو جائیں گے امریکہ کے لیے.
ट्रंप कहते हैं नहीं जी नहीं, बात सुने जी, मैं ये आपकी बात जो मर्जी है, लेकिन मेरे पर बहुत प्रेशर है कि एक जमहूरी अब ये ट्रंप की आप डीलिंग देखें कैसे कर रहे हैं आसिफ के साथ। और नहीं जी मेरे पर बहुत प्रेशर है, मेरी तो हुकूमत पे बड़ा प्रेशर है, मेरा भी तो बजट आ रहा है, मैंने तो सब कुछ साथ लेके चलना है, आपने देख लिया कितना प्रेशर है, ये है वो है। और उसने फिर जवाब दिया, कहते हैं जी बात सुने ट्रंप साहब, इमरान खान बहुत खतरनाक आदमी है। इमरान खान उस इमरान खान तो ये फौज जो हमारे पास न्यूक्लियर असासे वाली फौज है, इनके दरमियान ये दरार डाल रहा है, आपस में फौज के एक बीच में दरार डाल रहा है कि फौज आपस में लड़ जाए। ये तो खाना जंगी की तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहा है। ये तो क्या पता कि ये फौज जब ये आए तो ये हमारे न्यूक्लियर असासे कहां इस्तेमाल हो जाएं, मतलब इस तरह की बात। और इमरान खान बहुत खतरनाक आदमी है अमन के लिए, ये ट्रंप को कह रहा है। अच्छा, ट्रंप ने कहा अच्छा देखो मेरी बात सुनो, मुझे अमन चाहिए इस पूरे खिते में, मुझे अमन चाहिए, ये चाइना, ये मिडिल ईस्ट, ये साउथ एशिया, ये इंडो पैसिफिक, मुझे यहां अमन चाहिए, मुझे जंग नहीं चाहिए। अब ट्रंप की तरह मनूवरिंग दे, मुझे जंग नहीं चाहिए। तो हम हर एक के साथ जो है ना जो है वो पीस करना चाहते हैं, हम हर एक के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस खिते में तमाम मुल्क जो हैं वो लड़े नहीं, झगड़ा ना करें, ये ट्रंप कह रहे हैं। इसमें चाइना शामिल है, इसमें ईरान शामिल है, इसमें अफगानिस्तान शामिल है, इसमें हिंदुस्तान शामिल है, इसमें पाकिस्तान शामिल है, इसमें सऊदी अरेबिया शामिल है, और इसमें इजराइल भी शामिल है जी। इसने ये 6-7 मुल्क के नाम लिए, और हम चाहते हैं कि जी तमाम खिते में तमाम ये जो मैंने ताकतों का नाम लिया, ये जो है ये अमन से रहें। हाँ, इक्तिसादी तौर पर, मईशत के तौर पर हम अपने अपने जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, लेकिन मैं जंग नहीं चाहता। तो एवरीवन कहते हैं जी, और इस वजह से मैं चाहता हूं कि तमाम मुस्लिम ममालिक जो इस मुल्क में जो मैंने जिनका नाम लिया है वो इसराइल को रिकग्नाइज करें, जरा देखे कहां ले आए, और इसराइल को क्या करें, नॉर्मलाइज करें। अच्छा, कहते हैं मैंने ये कहने से पहले मैं इसको इस ले आया था कि भाई तूने अपनी डिमांड, मैंने डिमांड की कि इमरान को रिलीज करो और जमहूरियत बहाल करो। तूने कहा मैं इमरान को रिलीज नहीं कर सकता और मैं जमहूरियत बहाल नहीं कर सकता, इसलिए इमरान बहुत खतरनाक आदमी है। तो उसने कहा देखो मैं जंग नहीं चाहता, मैं फलाना नहीं चाहता, और उसने कहता है मैंने फिर अपनी जो है ना आई थ्रू माई डिमांड एट हिम, मैंने फिर अपनी जो डिमांड थी ना मैंने फेंकी, और तुम सब लोगों को ये करना पड़ेगा कि तुम्हें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, तो बताओ कर लोगे? आसिम का जवाब सुने, एग्जैक्ट वर्ड्स है आसिम का जवाब है। प्रेसिडेंट ट्रंप, मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूं फिर आपको उर्दू। प्रेसिडेंट ट्रंप, we have taken the temperature of all important politicians and stakeholders in Pakistan, including the military, and we don't have a problem of recognizing Israel and normalizing Israel. Normalizing का मतलब है कि हम उनसे फिर इक्तिसादी ताल्लुकात करें, उनको वीजा दें, वो यहाँ आए, वो यहाँ आके शराबें पिएं, अयाशियां करें। बड़े बड़े रिजॉर्ट खुल गए हैं जनाब कराची में। एक पीटीआई के एक्स बड़े बानी लीडर थे, उनके एक बड़े करीबी रिश्तेदार ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक बड़ा रिजॉर्ट खोला है। उस रिजॉर्ट में सुना है हर किस्म की रंगरंगलियां होंगी, तो ये आएंगे, हम जाएंगे, वो फलाना होगा, ये होगा है जी। जरा सुन ले कितनी इंटरेस्टिंग बात। हमने आसिम की रिपीट कर, हमने जनाब ट्रंप साहब टेम्परेचर ले लिया है तमाम अहम सियासतदानों का, तमाम अहम सियासी कुव्वतों का, सवाए इमरान को और पीटीआई का। हमने फौज के अंदर से भी असेस कर लिया है, और हमें कोई मसला नहीं होगा इसराइल को तस्लीम करने के लिए और इसराइल के साथ ताल्लुकात को फरोग देने के। समझ गए जी ये? लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये जमहूरियत बहाल करो और इमरान को रिहा करो, कि तो जमहूरियत रिहा होगी, तो ये इमरान का तो कभी भी ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा इसराइल को। आसिम मुनीर ट्रंप को कह रहा है कि इमरान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, और इमरान कभी भी इसराइल के साथ ताल्लुकात को फरोग नहीं देगा जब तक जो हमारा मौकफ है और उसका मौकफ है। और वो कहता है जी बड़ा दकियानूसी उसका मौकफ है, हम उससे आगे निकल गए हैं कि जी कुछ किसी किस्म का जो है ना जी समझौता इजराइल से नहीं है जब तक फलस्तीनियों की आजाद ना हो और आजाद ममलिकत ना बने। तो वो तो जी नहीं करने लगा आपसे, ठीक है जी। ये भी सुन लिया आपने इमरान के मुताबिक कितनी बड़ी एंडोर्समेंट दी है आसिम मुनीर ने ट्रंप के सामने। कहते जी इमरान खान हर एक को इक्वल समझता है, बराबर समझता है। उसको ये नहीं पड़ा कि अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, उसका जो एब्सोल्युटली नॉट, सॉरी भूल गया एक था, उसने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा उसको नहीं कहना चाहिए, तो उसको बड़ी तरीके से बात करनी चाहिए। तो उसने आप लोगों को ललकारा, वो हर एक को डराता है, धमकाता है, वो हमें भी डराता है, धमकाता है। वो समझता है कि वो जो हर चीज जो है उसकी मर्जी के तहत हो, वो हर एक को बराबर समझता है। हाय हाय।
ट्रंप कहता है इस वक्त ना मैंने देखा कि आसिम मुनीर बड़ा खुश हो चुका था कि यार मैंने ट्रंप को मनवा लिया है, ट्रंप ने देखे क्या मेरे से मांगा कि जी आप इजराइल को करें, तो मैंने ट्रंप को कह दिया कि तू फिर इमरान को करवाता है तो फिर क्या होगा। तो कहता है मैंने देखा कि वो बड़ा खुश हो गया, उसको ऐसे लगा कि जैसे वो डेल। तो कहता है मैंने कहा अच्छा यार मेरी बात सुनो, अगर यही एक्सचेंज करना है हमने कि जी इमरान अगर निकलेगा तो इसराइल को रिकॉग्नाइज, इसराइल तस्लीम हो जाएगा और नॉर्मलाइज हो जाएंगे, तो मेरी बात सुनो, मेरे पर इतना ज्यादा प्रेशर है मेरे सियासी दोस्तों का, सेनेट का, रैप का, कहता है उसने, फिर से मैंने उसको बताया इतना प्रेशर है, आपने देखा है सब कुछ है, आपके पाकिस्तानी है, सुना है आपके जब आप आए थे बड़ी एक सख्त प्रोटेस्ट हुआ था आपकी एम्बेसी के बाद, कहता है मैंने वो भी कह दिया। तो अगर मैंने इस सब प्रेशर को बर्दाश्त करना है ना तो मुझे आपको कुछ इसके अगेंस्ट देना पड़ेगा। कहता है जब मैंने ये कहा ना तो आसिम को समझ आ गई कि वो ट्रैप में फंस गया। कहते हैं व्हेन आई सेड दिस यू हैव टू नाउ गिव मी समथिंग इन रिटर्न, तो कहता है जी मैं, आसिम को समझ आई कि मैं ट्रैप में फंस गया हूं। तो कहते हैं एकदम उस आदमी ने अपने आप को उसके निकाले, उसने कहा देखें ट्रंप साहब, अगर सऊदी अरेबिया रिकग्नाइज कर ले, तस्लीम कर लेना, ये जरा सुने, आसिम मुनीर ट्रंप को कहता है अगर सऊदी अरेबिया रिकग्नाइज कर ले इजराइल को तो हम फौरन कर लेंगे। तो ट्रंप कहता है मैं, जब उसने ये कहा ना तो मैं 2-3 सेकंड चुप रहा और मैं उसको देखता रहा, और कहता है कि बात सुनो, अगर सऊदी अरेबिया रिकग्नाइज करे तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, फिर ये तो मैं इमरान खान से भी मनवा सकता हूं, ये मुझे पता है, मैं मोहम्मद बिन सलमान को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और मैं तो ये तो मुझे फिर तुम्हारी क्या जरूरत है, फिर तुम बहाल करो जमहूरियत, इमरान खान को रिलीज कराओ, और अगर सऊदी अरेबिया तस्लीम करेगा इसराइल को मैं इमरान खान से मनवा लूंगा, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर कहता है कि जब मैंने ये कहा तो मैंने सोचा कि ये आसिम मुनीर, ये पता नहीं क्या इसको इन्होंने गिदड़ सिंगी दी होगी कि ट्रंप को ऐसे करना, ट्रंप को ऐसे करना, ये समझते हैं कि जर्नल जो है ये ट्रंप बेवकूफ है, स्टूपिड है। वो लफ्ज उसका था, एवरीवन थिंक्स आई एम स्टूपिड एंड दे कम प्रिपेयर्ड बाय सकिंग अप टू मी एंड नाउ आई हैव ट्रैप्ड आसिम मुनीर इनटू रिकॉग्नाइजिंग इजराइल। ये आसिम मुनीर आया था कि मेरी ये तारीफें करेगा, मुझे बुद्धू बनाएगा, मुझे बेवकूफ बनाएगा, मुझे ये जो है इस तारीफों से ये समझेगा कि ये मेरे से काम निकलवा लेगा, जो भी इसका काम था कि इसको सपोर्ट करो। मैंने इसकी सारी चाल सुन के ना इसको फंसा दिया कि तूने इजराइल को तस्लीम करना है और तूने इजराइल से ताल्लुकात बढ़ा दिए। कहता है ये हुआ इसका नतीजा। फिर कहता है कि इसने कहा जब कॉन्वर्सेशन खत्म होने वाली थी तो ट्रंप कहता है कि मैंने आसिम को कहा तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते में जाके मुझे बताओ कि तुम इसमें करोगे, मैं अब्राहम अकॉर्ड्स की जो अनाउंसमेंट है रोकता हूं। अब आप रिलेट करें कि जब ये हफ्ता पहले मेरा ख्याल है ट्रंप ने कहा था कि अब्राहम अकॉर्ड में बड़े बड़े मुल्क आने वाले हैं, और एक ऐसा मुल्क आने वाला है जिसको आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। वो ना सीरिया था, बाय द वे, ना सीरिया था, ना सऊदी अरेबिया था, बिकॉज सबको पता है इवेंचुअली सऊदी अरेबिया कर लेगा, ठीक है, ये सबको पता है। और सीरिया तो खैर इनकी रखेल है, वो उनकी तो अपनी कोई हैसियत ही नहीं है मौजूदा हुकूमत की। तो वो बड़ा मुल्क कौन था? वो पाकिस्तान था। तो 2 हफ्ते का टाइम दिया है, इस 2 हफ्ते में आपने जो है ना बताना है मुझे कि नहीं, अगर नहीं है तो मैं फिर अपना वो रिचर्ड ग्रैंडल और जो विल्सन और सलमाए खलील रात और पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट वैक्ट जो है ना, ये जो मैं खोल दूंगा। अब जनाब ये नेट ये हुआ कि आपने ख्वाजा आसिफ का वो एक सवाल, मेरा ख्याल है नदीम मलिक से सवाल था कि जी अब्राहम अकॉर्ड्स आ रहे हैं फलाना, तो ख्वाजा आसिफ जो कि वैसे तो बड़ी डायरेक्ट जवाब देता है, उसे क्या जवाब दिया? कहता है जी हालात दुनिया की बड़ी तेजी से बदल रहे हैं और रियलिटीज बड़ी तेजी से बदल रही हैं, और हम एक बहुत बहुत अहम मुल्क है, हमारी बहुत बड़ी हैसियत है इस खिते में, और हम बाय स्टैंडर्ड नहीं रह सकते, हम बाहर खड़े हुए हालात की तब्दीली को बाहर से नहीं देख सकते, हमें अंदर जाना पड़ेगा, हमें इन हालात से फायदा उठाना पड़ेगा। क्या मकसद? अब ये 3 दिन पहले की बात है, मेरा ख्याल है कल की या परसों, ये अब जनाब ग्राउंड बनाना शुरू कर रहे हैं, और ये आप देखना अभी मौलवी आने शुरू हो जाएंगे, ये मोहम्मद अली मोहम्मद अली इंजीनियर टाइप इस क्रम के फ्रॉडिये, ये टीएलपी का बिकाऊ यजीद वो बच्चा, और बाकी इस किस्म के लोग जो हैं, इन्होंने अब आप देखना ये अब इसराइल की रिकग्निशन पे खुल के बात शुरू हो जाएगी, सियासतदान डिस्कशन टॉक शोज में ये बात शुरू हो जाएगी, ये अब ग्राउंड बना रहे हैं इसराइल को तस्लीम करने का, और इस वजह से इमरान खान को अंदर रखा कि इसकी कोई बात बाहर ना आए इसराइल के। तो मैं डायरेक्टली अलीमा खानम से कहता हूं, इनकी बहनों से कहता हूं कि ये इमरान खान का जो मौजूदा इनको रखा हुआ है बिल्कुल आइसोलेशन में, वो इसलिए रखा हुआ है कि कोई इनके पास बात ना जाए इसराइल की रिकग्निशन के मुतालिक या इसराइल की तस्लीम के मुतालिक, और ये उसके खिलाफ कोई बयान ना दे दे। और दूसरी बात यह है कि ये मुहिम का
اعلان نہ کر دیں اس سے پہلے کہ یہ اسرائیل کی جو تسلیم کر رہی ہے حکومت پاکستان، یہ اسرائیل کو اس کی اناؤنسمنٹ سے پہلے مہم نہ چلے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو ولسن نے کیوں شروع کیا، فری عمران خان اور پاکستانی ڈیموکریسی، ہم سب کو بیوقوف بنایا اس نے۔ یہ چال تھی ٹرمپ کی کہ اتنا پریشر لائے عاصم منیر کے اوپر کہ اس کو گٹر کے اندر پھینک کے، اس کو گٹر میں ڈبو کے اس سے ہر چیز منگوا لو۔ ہاں ٹرمپ نے ایک اور بات کی، کہتا ہے یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں، یہ اتنی سی بات پر اپنے ملک کو بھیج دیتے ہیں۔ کہتے دیکھیں، اپنے دوست کو کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے